وہ زینے اتر رہی تھی جب لاؤنج سے اسے تایا جی کے دھاڑنے کی آوازیں سنائی دیں، جسے سن کر اس کی بے داغ پیشانی پر شکن پڑے۔ وہ دوپٹہ سر پر درست کرتی مضبوط قدم اٹھاتی ہال میں داخل ہوئی تو وہاں تایا جی کسی بات پر تائی اماں کو باتیں سنا رہے تھے۔ ساجد صاحب اور عابد صاحب صوفوں پر براجمان سارے معاملے سے بے نیاز چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جبکہ ساجد صاحب مسلسل شیریں صاحبہ کو کسی بات پر سخت الفاظ سنا رہے تھے اور وہ سر جھکائے کھڑی تھیں۔ شیریں صاحبہ نے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ ساجد صاحب نے زوردار تھپڑ انہیں رسید کیا تھا اور یہیں معصومہ کی برداشت ختم ہو گئی۔ خود بخود اس کے قدم تائی ماں کی جانب بڑھے تھے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے، ایک جیتی جاگتی انسان ہے، سانس لیتی ہیں یہ بھی۔ آپ کوئی بھی بات انہیں زبان سے سمجھائیں گے تو یہ سمجھ جائیں گی، پھر مارا کیوں ہے آپ نے انہیں؟ شیریں صاحبہ کے آگے آ کر وہ ساجد صاحب کے مد مقابل کھڑی ہوئی تھی اور تھوڑی بلند آواز اور مضبوط انداز میں بولی تھی۔ غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ بے حد سرخ ہو گیا تھا، مگر وہ خود کو مضبوط کرتی کھڑی رہی، جبکہ اس کی جرأت دیکھ کر باقی سب دنگ رہ گئے تھے۔ بکواس بند کرو لڑکی، تم کون ہوتی ہو مجھے سکھانے والی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ساجد صاحب طیش میں آئے تھے اور معصومہ کو دیکھتے ہی غرائے تھے، جبکہ شور سن کر باقی لوگ بھی لاؤنج میں جمع ہو گئے۔ چلیں تائی ماں۔ وہ شیریں صاحبہ کا ہاتھ تھام کر ایک نظر ساجد صاحب کو سرد نگاہوں سے دیکھتی جانے لگی۔ خدا کی پناہ، اس لڑکی سے اس کی جرأت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے ماحول میں میری بیٹیوں پر بھی برا اثر پڑے گا۔ بس میں نے سوچ لیا ہے کہ میں ہانیہ کے لیے آج ہی مبشر کے رشتے کی ہاں کر دوں گا۔ ابا جان سے بھی بات کر چکا ہوں میں۔ وہ ساجد صاحب کو ششتر چھوڑ کر شیریں صاحبہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے آگے بڑھی ہی تھی کہ عابد صاحب کی بات سن کر اس کے قدم رک گئے۔ قائم نے ہانیہ سے شادی کا اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ گھر پر بھی کم ہی رہتا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ پہلے قائم اپنی رضامندی ظاہر کر دے ہانیہ کے لیے، پھر معاملہ آگے بڑھانے کا سوچے گی۔ ابھی اسی لیے اس نے کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا، مگر عابد صاحب کی زبان سے خاندان کے مشہور لفنگے ایک نمبر کے آوارہ اور نشئی کا نام سن کر اسے دھچکا لگا تھا۔ اس نے پہلے ہانیہ اور پھر چچی کو دیکھا، جن کے یہ بات سن کر رنگ ہی اڑ گئے تھے۔ چچی جان نے ہانیہ کو ساتھ لگا کر اپنا سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی مبشر نے پیسوں کا لالچ دے کر ہانیہ کا رشتہ مانگا تھا، مگر انہیں نہیں معلوم تھا کہ عابد صاحب فقط پیسوں کی خاطر اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کریں گے۔ چچی جان، آپ جانتی ہیں نا وہ کتنا برا آدمی ہے، پلیز اس وقت خاموش مت رہیں، اپنی بیٹی کے لیے بولیں پلیز۔ معصومہ تھوڑی دھیمی آواز میں چچی جان سے التجائی انداز میں مخاطب ہوئی، مگر چچی جان نے ہانیہ کو ساتھ لگائے بہتے آنسوؤں کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ معصومہ نے بے یقینی سے پہلے چچی جان کو اور پھر روتی ہوئی ہانیہ کو دیکھا۔ ایک عورت کمزور ہو سکتی ہے، یہ بات مانی جا سکتی ہے، مگر چچی جان، ایک ماں بہت مضبوط ہوتی ہے، پلیز اس وقت اپنی بیٹی کے لیے کوئی سٹینڈ لیں پلیز۔ وہ اب دھیمی آواز میں باقاعدہ انہیں سمجھا رہی تھی، مگر عابد صاحب کے کانوں نے اس کے الفاظ سن لیے۔ بھائی صاحب، آپ کی بیٹی خود تو بے انتہا بدتمیز ہے ہی صحیح، اور اب وہ میری بیوی اور بیٹیوں کو بھی پٹی پڑھا رہی ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے ماجد بھائی کے سامنے آپ کی موجودگی میں کیسے زبان چلا رہی تھی؟ عابد صاحب معصومہ کی سمت ہاتھ سے اشارہ کرتے ساجد صاحب سے مخاطب ہوئے، جبکہ ساجد صاحب اب غصے سے معصومہ کی جانب لپکے تھے۔ بازو سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا۔ اس دوران معصومہ کے ہاتھ شیریں صاحبہ کے ہاتھ سے چھوٹ گئے اور وہ ششدر سی اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ معافی مانگو اپنے تایا جان سے معصومہ۔ وہ معصومہ کا بازو اپنے سخت شکنجے میں لیتے ہوئے دھاڑے، جبکہ معصومہ نے ناگواری سے پہلے عابد صاحب اور پھر ماجد صاحب کو دیکھا، پھر اپنے باپ کے ہاتھ کو جو اس کے نازک بازو کو سختی سے پکڑے ہوئے تھا۔ میں نے کہا معافی مانگو بھائی صاحب سے، سنا نہیں تم نے؟ معصومہ کو ہنوز خاموش کھڑا دیکھ کر وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے دھاڑے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا بابا جس کی میں معافی مانگوں۔ چٹاخ! ابھی الفاظ معصومہ کی زبان سے ادا ہی ہوئے تھے کہ ساجد صاحب کا بھاری ہاتھ اس کے سفید گال کو سرخ کر گیا۔ تھپڑ اس قدر زوردار تھا کہ معصومہ ایک طرف لڑکھڑا گئی، جبکہ باقی سب حیرت سے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے، جبکہ عابد صاحب اور ماجد صاحب کے چہرے پر خوشی سے مسکراہٹ ابھری، جبکہ معصومہ نے خاموش نگاہوں سے ساجد کو دیکھا۔ چٹاخ! معصومہ کی ہٹ دھرمی پر ایک بار پھر ان کا ہاتھ اٹھا تھا۔ تم واقعی اپنی ماں کی طرح بدتمیز ہو، اپنے باپ کی بھی بات نہیں مان رہی تم۔ کیا بول رہا ہوں میں؟ اب بھی اسی وقت معافی مانگو اپنے تایا سے۔
मासूमा के सूजे चेहरे को देखते वो फिर से धाड़े थे, जबकि मासूमा अपनी आंखों में आए आंसू अपनी पलकों पर बार बार झपका कर रोक रही थी। अपनी माँ के जिक्र पर उसके दिल में ठीस उठी थी। खुदा इन लोगों की रस्सी दराज करता है जिनके दिलों पर मोहरें लग चुकी होती हैं, इसीलिए मुझे खुदा से कभी शिकवा नहीं हुआ। बेशक इंसान भूल जाता है, मगर खुदा अपने बंदे के साथ हुई ज़रा बराबर भी ज़्यादती नहीं भूलता। मेरी माँ समेत इस घर की हर औरत पर जितने भी जुल्म हुए हैं उसका हिसाब ज़रूर होगा अनकरीब। हर कोई अपने अंजाम को ज़रूर पहुँचेगा, सिर्फ उस वक्त का इंतज़ार करने की ज़रूरत है। बेशक खुदा हर फिरौन के लिए मूसा को ज़रूर भेजता है। वो बुलंद आवाज़ और मजबूत लहजे में ठहर ठहर कर बोल रही थी, जबकि उसकी निगाहें वक्फे वक्फे से साजिद, माजिद और आबिद साहब पर पड़ रही थीं। उसके अल्फाज वहाँ मौजूद हर शख्स को साकित कर गए। उसी पल साजिद साहब की गिरफ्त उसके बाजू पर ढीली पड़ी तो मासूमा ने फ़ौरन अपना बाजू उनसे छुड़वाया और अपने सर से कंधे पर लुढ़कते दुपट्टे को सर पर दरुस किया और सूजे हुए चेहरे पर से सख्ती से आंसू साफ किए। एक सर्द निगाह सब पर डालती, मजबूत कदम उठाती वो आगे बढ़ रही थी। जब सीढ़ियों के करीब खड़ी मुजफ्फर साहब के पास रुकी और एक नज़र उन्हें देखती आगे बढ़ गई। ये क्या किया है तुमने साजिद? हाथ क्यों उठाया तुमने इस पर? मासूमा के वहाँ से जाने के बाद सबसे पहले मुजफ्फर साहब का सख्ता टूटा था। गज़बनाक तासुरात लिए वो लाउंज में दाखिल हुए और साजिद साहब की जानिब बढ़े। अब्बा जान, देखा नहीं आपने किस तरह जुबान चल रही थी इसकी? बाप हूँ मैं इसका, अगर बदतमीजी करेगी तो ऐसे ही करूँगा मैं। साजिद साहब तो गुस्से से पागल ही हो रहे थे। मुजफ्फर साहब को देखते ही तैश में आकर कहने लगे, बकवास बंद करो अपनी। ये जो तुमने किया है ना, इसके बाद जानते हो कायम और बाजिल क्या करेंगे तुम्हारे साथ? अपने बेटों को तुम लोग अच्छी तरह जानते हो ना। मुजफ्फर साहब की गरजदार आवाज़ लाउंज में गूंज रही थी, जबकि उनकी आवाज़ सुनते ही सब खवातीन वहाँ से दबे पांव निकली थी। अब लाउंज में सिर्फ मुजफ्फर साहब और उनके तीनों बेटे थे। अब्बा जान, पहले बेटी है वो मेरी और फिर किसी की बहन और बीवी है। साजिद साहब माथे पर बल डाले रोबदार आवाज़ में बोले, ये बात अपने बेटे के सामने बोलना तो मानूंगा मैं तुम्हें, फिर वो तुम्हें बताएगा इसका जवाब। और फिर क्या बाजिल को नहीं जानते तुम? अगर इस लड़की ने बता दिया ना तो वो दोनों आसमान सर पर उठा लेंगे। मुजफ्फर साहब बेटे को आईना दिखाते गुर्राए थे, जबकि उन्हें हकीकतन परेशानी हो रही थी कि अगर बाजिल और काइम को यह हंगामा मालूम हुआ तो वो जाने दोनों क्या कर गुजरेंगे। अब्बा जान, आप अपने पोतों के आगे अपने बेटों को तो कुछ समझते ही नहीं हैं। आपकी शय पर तो दोनों बाप को बाप नहीं समझते हैं ना। साजिद ने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। वो लड़की इसी काबिल थी। उसका दिमाग उसके भाई ने ही तो ख़राब किया हुआ था। अब बाजिल साहब ने भी मज़ीद सर पर चढ़ा दिया है उसको, उस कल की लड़की को। आबिद की बेटियां भी तो हैं, उनकी तो जुर्रत नहीं होती किसी के सामने ज़ुबान खोलने की, मगर वो लड़की। माजिद साहब तो पहले ही तिल मिलाए हुए थे। मज़ीद मुजफ्फर साहब की उस लड़की की तरफदारी करना उन्हें सख्त नागवार गुजरा था। चेहरे पर नागवारियत लिए बोले, तुम लोग इस काबिल भी नहीं हो कि किसी लायक समझा जाए तुम लोगों को। सिवाय अय्याशी के किया क्या है तुम तीनों ने सारी ज़िंदगी? आज अगर मैं हाथ खींच लूँ ना तुम तीनों से तो सड़क पे आ जाओगे तुम लोग। मुजफ्फर साहब बेहद हद तक आमेज़ अंदाज में धाड़े थे। वो खुद चाहे मासूमा को सख्त नापसंद करते थे, मगर उनके दोनों पोतों के लिए वो बहुत अहम थी। अगर आज उनकी मौजूदगी में मासूमा के साथ ये सब कुछ हुआ था तो ये तय था कि उनके पोते सबसे पहले उन्हीं से बास पुरस करेंगे। और आपके पोते, वो तो जैसे आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। अरे वो बाजिल जाने किन किन गुंडे और ख़तरनाक किस्म के गिरोहों के साथ ताल्लुक़ रखता है, जाने दिन रात कहाँ कहाँ आवारा गर्दी करता फिरता है। वो क्या समझता है मैं कुछ नहीं जानता। और काइम, वो 2 टके की सरकारी नौकरी कर रहा है, FIA का मामूली ऑफिसर। मशहूर सियासतदान मुजफ्फर शिराजी के दोनों पोतों की हकीकत है ये। और हम तीनों, जो आपकी नज़र में कुछ नहीं है, वो मुल्क के सबसे बड़े ज्वेलर शिराजी ज्वेलर्स के मालिक हैं। शिराजी ज्वेलर्स के मालिक हैं हम तीनों। माजिद साहब तो आज फट ही पड़े थे। वो तीनों बेटे जो हमेशा बाप के सामने कुछ बोलते ही ना थे, आज उनकी बर्दाश्त खत्म हो गई थी। बकवास बंद करो, जैसे मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। रातों रात इतना काम कैसे चल गया तुम लोगों का? अभी चंद साल पहले की बात है, मेरे सामने हाथ फैलाते थे तुम लोग पैसों के लिए, और अब गोडे गोडे हराम में डूबे हुए हो तुम लोग। और वो जिनमें से एक को आवारा समझते हो ना तुम, और दूसरे को मामूली ऑफिसर, वो दोनों क्या हैं एक दिन तुम तीनों को मालूम हो जाएगा।
सारी अकड़ ख़त्म हो जाएगी तुम तीनों की। मुजफ्फर साहब अपने तीनों बेटों को सुर्ख अंगारा आंखों से देखते अपनी भारी रोबदार आवाज़ में धाड़ रहे थे, जबकि मुजफ्फर साहब की बात सुनकर उन तीनों को ही पिछली बार बाजिल की कार्रवाई याद आई थी कि इस तरह चंद घंटों में उनकी कई शॉप सील कर दी गई थी। भाई साहब, अब्बा जान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए था उस लड़की पर। आबिद साहब खासे शातिर आदमी थे, मामले की नज़ाकत समझते हुए अपने तई पैंतरा बदला था और बाप की पैरवी करते हुए बोले, सारी जिंदगी गुजर गई तुम लोगों की, मगर अकल नहीं आई तुम लोगों को। जाने किस गुनाह की सज़ा मिल रही है तुम तीनों की सूरत में मुझे। मुजफ्फर साहब एक सख्त निगाह उन तीनों के परेशान चेहरों पर डालते एक बार फिर गुर्राए थे। अब्बा जान, गलती हो गई है साजिद से, मगर ये बात बाजिल और काइम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आप बात को संभाल लेंगे। माजिद साहब का गुस्सा उतरा तो वो भी मामले की संगीनी समझने के काबिल हुए। वो अपने बेटे को तो अच्छी तरह जानते थे, वो कभी भी किसी को बख्शता नहीं था। यह सब पहले सोचना था कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। उस वक्त तो गुस्से में पागल हो गए थे तुम भी नहीं रोक सकते थे साजिद को। मुजफ्फर साहब नफ़ी में सर हिलाते, लहजे में नागवारियत लिए खासा बुलंद आवाज़ में गोया हुए, अब्बा जान, मैं मासूमा को समझा लूँगा, वो काइम और बाजिल को कुछ नहीं बताएगी। साजिद साहब को भी अब एहसास हो रहा था कि वो गुस्से में कुछ ज़्यादा ही कर गए। मुजफ्फर साहब को देखते उन्होंने खुद को तसल्ली दी थी। परेशानी वहाँ मौजूद चारों नफूस के चेहरों से आया थी। तुम तो रहने ही दो, मैं खुद देख लूँगा उस लड़की को। मुजफ्फर साहब एक खौफ निगाह अपने तीनों बेटों के परेशान चेहरों पर डालते वहाँ से चले गए। पिछली बार उसने हमारा करोड़ों का नुकसान करवाया था, जाने इस बार वो क्या करेगा। बाप के जाते ही साजिद साहब परेशानी से अपनी पेशानी मसलते हुए बोले, ये पहले सोचते तुम, अगर मजीद नुकसान हुआ कारोबार में तो अब्बा जान का कहा सच हो जाएगा, सड़क पर आ जाएंगे हम तीनों, और इस बार तो अब्बा जान भी साथ नहीं देंगे हमारा। माजिद साहब लाउंज में परेशानी से चक्कर काटते हुए साजिद साहब को गुस्से से देखते गुर्राए, भाई उस वक्त गुस्सा आ गया था मुझे। साजिद साहब भरपूर संजीदगी से गोया हुए थे। वो तीनों अब हकीकतन बेहद परेशान थे। वो कितनी मजबूती से सबके सामने जवाब देकर आ गई थी, मगर कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके बेड के साथ टेक लगाकर जैसे ही फर्श पर बैठी तो घुट घुट कर बेआवाज़ रोने लगी। क्या ऐसे होते हैं बाप? क्या बाप घने दरख्त की मानिद नहीं होते औलाद के लिए? दुनिया की सर्दो गर्म से बचाते हैं बाप। तो उसका बाप कैसा था जिसने कभी शफकत भरा हाथ उसके सर पर नहीं रखा था? उसकी माँ छीन ली उसे, तड़पा तड़पा कर मार दिया उसकी माँ को। किसी को माफ़ नहीं करूँगी मैं, सब बुरे हैं, और सबसे बुरा वो है जिसने मेरे दिल में अपनी मोहब्बत का बीज बोया है। हाँ, वो सबसे बुरा है। वो नहीं आया ना आज भी सबके सामने उसके बाप ने उसे किस जुर्म की सज़ा दी थी वो नहीं जानती थी, लेकिन इस घर में यही तो होता था। तो मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? मामा अब बहुत याद आती हैं मुझे, क्यों छोड़कर चली गई मुझे। आपको पता है बाबा ने कभी प्यार नहीं किया मुझे, और भैया भी नहीं थे आज, और वो भी नहीं आया। वो क्यों नहीं आया आज? उसने तो कहा था कि जब मैं कहूँगी वो तब ज़रूर आएगा। फिर क्यों नहीं आया आज? वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। हाँ, वो मोहब्बत नहीं करता मुझसे। उसने मेरी सिर्फ अना तोड़ने के लिए शादी की है मुझसे, और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, और वो कामयाब हो गया अपने मकसद में। अगर वो मुझसे मोहब्बत करता होता तो कभी इजहार तो करता ना, मगर नहीं, उसने तो आज तक कभी नहीं कहा कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। क्यों आज याद आ रहा है वो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, उसकी भी नहीं। मासूमा अपना बेतहाशा दुखता सर हाथों में गिराए घुटी घुटी आवाज़ में रो रही थी। उसे अपनी मामा, अपना भैया और बाजिल शिद्दत से याद आ रहे थे, मगर उसे सबसे ज़्यादा शिकवे बाजिल से हो रहे थे, और वो ये भी नहीं जानती थी कि उसे इस वक्त बाजिल की इतनी शिद्दत से क्यों याद आ रही है। आज दोपहर जब उसने बाजिल से मैसेज पर बात की थी तो उसे लगा था कि वो आज उसके कहने पर ज़रूर आएगा, मगर वो नहीं आया था। उसे रोते हुए दोपहर से रात हो गई थी। उसका सर बहुत बुरी तरह दुख रहा था। वक्फे से दरवाजे पर दस्तक हो रही थी, मगर वो नज़रअंदाज कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी फूफो या हानिया होंगी जो उसे तसल्ली देने की गर्ज से आई होंगी, मगर वो मासूमा शिराजी थी। उसे किसी की हमदर्दी की ज़रूरत दरपेश नहीं थी। वो खुद को संभालना अच्छे से जानती थी। उसे हिम्मत कभी नहीं हारनी थी। अपने बेतहाशा दर्द करते सर को नज़रअंदाज करती वो उठी और वॉशरूम की जानिब बढ़ी। चंद लम्हों में फ्रेश होकर बाहर निकली और ड्रेसिंग टेबल के आगे जाकर खड़ी हुई। खुद का शीशे में जायज़ा लेने लगी।
दायां रुखसार बाएं रुखसार की निस्बत खासा सूजा हुआ था। उंगलियों के निशान वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे। आंखों के डोरे रोने के बाइस बेहद सुर्ख हो गए थे। खुद को देखकर उसने एक गहरा सांस लिया और नीले रंग का दुपट्टा कांधे से उठाकर सर पर अच्छी तरह ओढ़ लिया। सामने मेज पर पड़ा अपना मोबाइल उठाते वक्त उसने दिल से दुआ की थी कि बाजिल का रिप्लाई आया हो, मगर उसे अफसोस हुआ था कि बाजिल का रिप्लाई अभी तक नहीं आया था। मोबाइल हाथ में लेकर वो दरवाजे की जानिब बढ़ी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। अभी भी सर में शदीद दर्द हो रहा था उसके, मगर अपना दर्द नज़रअंदाज करती वो जीने उतरने लगी जब नूरी उसे हैरान परेशान सी सामने से आती दिखाई दी। छोटी बीबी, आपको कुछ चाहिए था? हुक्म करें जी। मासूमा तक पहुंचकर नूरी उसका सूजा चेहरा देखती परेशानी से पूछने लगी। नहीं, कुछ नहीं। वो आम से अंदाज में नूरी को जवाब देती आगे बढ़ रही थी जब नूरी मुअद्दब सी उसके पीछे चलने लगी। बीबी जी, हुक्म करें, मैं खाना ले आऊं आपके लिए? नूरी मासूमा के पीछे चलती अदब से पूछने लगी तो मासूमा आखिरी सीढ़ी पर रुक कर उसकी जानिब मुड़ी। कहाँ? मासूमा ने अपनी पेशानी पर बल डाले और पूछा। जी, जहाँ आप कहें, आपके कमरे में। नूरी उसके सवाल पर बौखला गई। जल्दी से वजाहत पेश करने लगी। क्यों? मैंने तो नहीं कहा ये तुमसे, मुझे तो सबके साथ ही खाना खाना है। नूरी को देखती वो जवाब देकर आगे बढ़ गई, जबकि पीछे नूरी बेयकीनी से उसकी पुश्त को तकती रह गई। वो आहिस्तगी से मगर मजबूत कदम उठाती डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई तो दादा जान अपनी सरबराही कुर्सी पर विराजमान थे। उनके दाएं जानिब साजिद साहब और उनके साथ माजिद साहब विराजमान थे, जबकि दादा जान की बाईं वाली कुर्सी पर आबिद साहब विराजमान थे, जबकि बाकी खवातीन वहीं खड़ी थीं। ये देखकर मासूमा ने एक गहरा सांस लिया, खुद को कंपोज किया। अस्सलाम वालेकुम। डाइनिंग हॉल में दाखिल होकर उसने सबको देखते हुए हल्का सा मुस्कुराकर थोड़ी बुलंद आवाज़ में सलाम किया, जबकि मासूमा की आवाज़ पर मुजफ्फर साहब समेत सब ने उसे चौंक कर देखा। यकीनन दोपहर को हुए वाक़या के बाद उसकी यहाँ मौजूदगी गैर मुतवक्को थी। इसी हैरत के बाइस किसी ने उसके सलाम का जवाब ना दिया तो वो किसी पर भी दूसरी नज़र ना डालते हुए कदम कदम चलती आबिद साहब के पास आकर रुकी। चचा जी, ये मेरे शोहर की जगह है, यहाँ बैठने का हक मेरा है, आप किसी दूसरी जगह पर बैठ जाएं। आबिद साहब की आंखों में देखती वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए इतनी बुलंद आवाज़ में बोली कि हॉल में मौजूद मुलाजमीन ने भी उसको चौंक कर देखा, जबकि बाकी घर वालों की तरह मुजफ्फर साहब भी मासूमा को हैरत और बेयकीनी की मिली जुली कैफियत लिए देख रहे थे। मुझे बहुत भूख लग रही है, मेहरबानी करके ज़रा जल्दी उठ जाएं। आबिद साहब को हनूस खामोशी से अपनी जानिब तकता पाकर वो लहजे में भरपूर झुंझलाहट लिए बोली तो वो होश की दुनिया में आए और जब हवास बेदार हुए तो अपनी बेइज्जती का शिद्दत से एहसास हुआ। चेहरे का रंग यकदम गुस्से के बाइस सुर्ख पड़ा। खूनख्वार निगाहों से मासूमा को घूरा, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कर सकते थे। पहले का मामला अभी सुलझा नहीं था। मजीद वो मासूमा को कुछ कहकर और मामला नहीं बिगाड़ना चाहते थे, इसीलिए शर्मिंदगी से सर झुकाए उठे और साथ वाली कुर्सी पर बैठने लगे। यहाँ नहीं चचा जी, यहाँ मेरे साथ ताई माँ बैठेंगी, आप किसी और कुर्सी पर बैठ जाएं। आबिद साहब को साथ वाली कुर्सी पर बताकर वो फिर से अटल अंदाज में उसको देखते हुए गोया हुई तो आबिद साहब दांत पीस कर दो कुर्सी छोड़कर बैठ गए, जबकि मासूमा ने वहां साकित खड़ी शीरी साहिबा को हाथ से पकड़कर कुर्सी पर बिठाया और खुद बाजिल की कुर्सी पर बैठ गई, जबकि मुजफ्फर साहब ला ताल्लुक बने अपनी प्लेट पर जो के खाना खा रहे थे। अरे बाबा, क्या हो गया है आपको? दादी जान माँ हैं आपकी और आपकी माँ खड़ी हैं और आप आराम से बैठे खाना खा रहे हैं। चलें जगह दें दादी जान को, आज भैया की जगह पर बैठेंगी वो। मासूमा कुर्सी पर बैठते ही सामने बैठे अपने बाप को देखती आम से अंदाज में बोली तो साजिद साहब ने फटी आंखों से अपनी बेटी को देखा और फिर मुजफ्फर साहब को, जिन्होंने आंखों के इशारे से उसे उठने का कहा तो नाचार उन्हें भी वो जगह खाली करना पड़ी, जबकि मासूमा ने मुस्कुराकर दादी जान को देखा और कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। दादी जान के बैठने के बाद उसने चची और फुप्पो को भी बैठने का इशारा किया, जो साकित खड़ी सारी कार्रवाई देख रही थी, और फिर मासूमा पुरसकून होकर खाना खाने लगी, जबकि मुजफ्फर साहब ने कई बार मासूमा को मुखातिब करने की कोशिश की, मगर जाने क्या हुआ कि उन जैसे रोबदार शख्स में हिम्मत ही ना हुई कि वो मासूमा से आज दोपहर हुए वाक़या का जिक्र कायम और बाजिल से करने से मना करते। यहाँ तक कि वो जिस तरह सर बुलंद करके मजबूत कदमों से आई थी उसी तरह खाना खाकर चली भी गई, मगर वो उससे बात ना कर सके, जबकि साजिद, आबिद और माजिद साहब ने सवालिया निगाहों से बाप को देखा, जिनमें यह सवाल वाज़े था कि मासूमा से बात क्यों नहीं की।
मासूमा के उठकर जाने के बाद मुजफ्फर साहब भी उठ खड़े हुए। वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गए और फिर पै दर पै माजिद साहब, साजिद साहब और आबिद साहब भी वहाँ से चल दिए। अब हॉल में सिर्फ घर की खवातीन मौजूद थीं। अम्मा, ये सब ठीक नहीं हुआ, नौशीन साहिबा की भर्राई हुई आवाज़ ने डाइनिंग हॉल की खामोशी में इर्तियाश पैदा किया। वो गुमसुम बैठी दादी जान को देखती हुई बोली थी, जिस पर दादी जान ने चौंक कर नासमझी से उन्हें देखा। क्या ठीक नहीं हुआ? क्या ठीक नहीं हुआ? दादी जान ने माथे पर बल डाले अपनी बेटी को देखते हुए पूछा। मासूमा की बात कर रही हूँ मैं, नौशीन साहिबा ने बेबसी से कहा। दादी जान ने एक ठंडी आह भरी थी। अगर वो बच्ची जुबान से अपनी तकलीफ बयान नहीं करती और सबके सामने आंसू नहीं बहाती तो इसका मतलब ये तो ना हुआ कि उसे कभी दुख नहीं होता। देखा आपने कैसा चेहरा सूजा हुआ था उसका, और आंखें कितनी सुर्ख हो रही थी। नौशीन साहिबा अपने दुपट्टे से अपने आंसू पोंछते हुए बोली थी, जबकि उनकी बात पर ताई जान और चची जान की आंखें भी भीग गई थीं। मुझे भी वो ठीक नहीं लग रही थी। तुम ऐसा करना, थोड़ी देर उसके पास चली जाना और चेहरे पर गर्म कपड़े से सिकाई कर देना, दूध देकर सुला देना उसे। दादी जान की आंखों के सामने मासूमा का उदास चेहरा आया था। कुछ दिन पहले वाली शादाबी और खुशी उसके चेहरे पर चंद घंटों में ही फीकी पड़ गई थी। अम्मा जान, मैं गई थी, मगर उस वक्त उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। मेरे ख्याल से उसे अभी अकेले ही छोड़ देना चाहिए। वो सुबह तक ठीक हो जाएगी। वो मासूमा को अच्छी तरह जानती थी कि इस वक्त वो अकेला रहना चाहती है। वो किसी की भी हमदर्दी लेने की कायल कभी नहीं रही थी। उसे खुद को संभालना आता था। इसीलिए दादी जान की बात की नफ़ी करते हुए वो बोली, ठीक है सोनार, अब कुछ रहम डाले इस घर के मर्दों पर। दादी जान ने चेहरा बुलंद करके खुदा से इल्तजा की। इतने सालों में तो नहीं आया रहम, अब क्या आ जाएगा अम्मा जी। आज मासूमा को देखकर उसकी माँ याद आ गई थी। वो भी ऐसे ही डट कर खड़ी हो जाती थी जुल्म के खिलाफ। शीरीं साहिबा भीगी हुई आवाज़ में बोली थी, मगर क्या आपको याद नहीं भाभी जान, आखिर में क्या हुआ था उनके साथ? चची जान कुछ सोचते हुए बोली थी, ख़त्म करो ये बातें और जाकर अपना अपना काम करो सब। दादी जान ने उन सब की बात नज़रअंदाज करके इस बार सख्ती से सबको हुक्म दिया तो वो सब वहाँ से उठ खड़ी हुई।